Hello students, today we are going to discuss Newton-Raphson method. These are the iterative methods which based on the idea of successive approximations. That is, starting with one or more initial approximations to the root. We obtain a sequence of approximations or iterates xk. This is the kth value which in the limit converges to the root. The methods give only one root at a time. For example, if we take a quadratic equation a0 x square plus a1x plus a2 equal to 0 such that a0 is not equal to 0, then the quadratic equation have the solution which can be solved by assuming following iteration methods. First we can write xk plus 1 can be written minus a2 plus a0 xk square over a1 for all the values of k, 1, 2 and so on. If we take the second iteration method like xk plus 1 is equals to minus a2 over a0 xk plus a1, k is equals to 0, 1, 2 and so on. Or we can take another iteration like xk plus 1 यानी k plus 1th term minus a2 plus a1 xk over a0 xk for all k 0, 1, 2. The convergence of the sequence xk जो आपने पढ़ी है रियल एनालिसिस में, दिस कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ टर्म्स आएंगे तो xk एक सीक्वेंस फॉर्म करेगा xk. द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ दिस xk टू द नंबर जिस पे भी उसका रूट आता है, द रूट ऑफ द इक्वेशन 1 डिपेंड्स अपॉन द rearrangement of these three. इसको हम तो लिख लेते हैं. And the choice of starting approximation, which is also called initial approximation. This one, x naught. कहने का मतलब है अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं या कोई भी आपका फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में, तो अगर आप कोई भी इटरेशन लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप इटरेशन मेथड अगर x के प्लस 1 इसकी फॉर्म में लिखते हैं, जैसे यहाँ से x की वैल्यू निकाल के लिखा हमने, या फिर x के प्लस 1 हम इस तरीके से अरेंज करते हैं माइनस a2 ओवर a0 xk प्लस a1, या फिर इस तरीके से अरेंज करते हैं xk प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a2 प्लस a1 xk ओवर a0 xk, तो इन तीनों में से कौन कन्वर्ज करेगा वो आपको सॉल्यूशन देगा. We have already studied about two iterative methods. First is secant method and the second one is regular Fauci method. So the methods we have discussed, also called iteration method based on first degree equation. Let's start with the next method, Newton-Raphson method. Let us take f of x is equals to a0 x plus a1 equals to 0, for which we have to find the root of this equation, that is the value of x. So in Newton-Raphson method, we determine the value of a0 and a1 in 1 using the condition fk is equals to a0 xk plus a1 and fk dash, that is the derivative of kth function, that is the derivative of the function at xkth position, which is a0. Let's take this equation 2. On substituting the values of a0 and a1 from equation 2 to
this expression, which we have derived from equation 1, and representing the approximate value of x, by xk plus 1, we obtain xk plus 1 is equals to xk minus f of k over f of k dash for all k 0, 1 and so on. This method is called Newton-Raphson method. This formula is from Newton-Raphson method. This method, which we have derived, may be also obtained directly from the equation of secant method, which is this one. ये मेथड हम डिराइव ऑल्सो कर सकते हैं किससे, दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन किसकी है, secant मेथड और रेगुलर फॉल्से मेथड फॉर ऑल k 1, 2 एंड सो ऑन. बाय टेकिंग, ये कैसे कर सकते हैं हम डिराइव इस मेथड से, इसको बाय टेकिंग लिमिट xk minus 1 approaches to xk. In the limit when xk minus 1 approaches to xk, the chord passing through the point, जो हमने पॉइंट्स लिए थे xk, fk and xk minus 1, fk minus 1, becomes the tangent. क्योंकि जब हम अप्रोच करवाएंगे तो it becomes the tangent at the point xk, fk, where अगर हमारे पास सेम यही इक्वेशन रहे तो हम इसे कॉर्ड मेथड भी कहते हैं. तो यहाँ जो आपके पास कॉर्ड है पासिंग थ्रू द पॉइंट xk, fk टू xk minus 1, fk minus 1 becomes the tangent at the point of xk, fk. ठीक है जी. Thus in this case the problem of finding the root of equation is equivalent to finding the point of intersection of the tangent to the curve y is equals to f of x at the point xk, fk with the x-axis, which can also be represented by using the graph. Here y-axis, here x-axis. This is the function for which we are going to find the root. तो हमारे पास y is equals to f of x है, ये फंक्शन जो भी कर्व है आपके पास, इसका रूट फाइंड आउट करना है. दैट इज x-axis के साथ आपके पास इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लेट वी हैव टेकन हेयर x नॉट, f ऑफ x नॉट फंक्शन की वैल्यू, ये आपका पॉइंट था x नॉट जो आपने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ली है. यहाँ पे फिर हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया विच कट्स द x एक्सिस. ये आपकी सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी, दैट इज x1. सेम जैसे सेकेंड में आया था, वहाँ पे आपके पास कॉर्ड आया था, यहाँ पे आपके पास वही चीज़ अप्रोच कर गई है किसको, जैसे xk minus 1 हमने लिमिट ले लिया xk के साथ, तो वो आपकी लिमिट, वो इट शोज दैट इट इज़ अ टेंजेंट टू द कर्व. तो ये आपके पास नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ जाती है x1 f ऑफ x1, और ये नेक्स्ट पॉइंट, इसी पॉइंट पे फिर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया एंड देन अगेन नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन एंड गोइंग क्लोजर टू द रूट. और ये हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास रूट है, दैट इज xi. अगेन वी टेक द पॉइंट x2 f ऑफ x2, और जितना आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते जाएंगे उतना आप क्लोज होते जाएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ. हियर वी ओनली नीड टू इवैल्यूएशन, fk एंड fk प्लस डेरिवेटिव. तो जो आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है टू द इटरेशन xk plus 1 is equals to xk minus fk over fk dash. This method is also deduced with the help of Taylor series method. You can easily obtain this formula of iteration for Newton-Raphson by using Taylor series expansion for the function f(xk) plus delta x equals to 0, and then you get the value of delta x. You can easily read it from your notes or books. Let's do one question with Newton-Raphson method where we have to find the smallest positive root of the equation. To find positive root of the equation f of x cube minus 5x plus 1 equals to 0. Now first we have to check
whether the root lies, because we have to find smallest positive root, so let's start with f of x naught 0 से चेक करेंगे. तो f naught which is f of x naught which is equals to f at 0 which is equals to 1 and x1 is equals to 1. हम दूसरी अप्रॉक्सीमेशन चेक करेंगे which is f of 1 is equals to -3, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू इन दो वैल्यूज़ पे ऑपोजिट साइंस के साथ आ रही है. देयरफॉर इट मीन्स फंक्शन मूव्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू सम नेगेटिव. ठीक है, तो इफ लाइक दिस इट मीन्स रूट लाइज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स x is equals to 0 and x is equals to 1. So let's start. Take the initial, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, initial approximation, but that value should lies between 0 and 1 as x naught is equals to 0.5. So we have फंक्शन की वैल्यू क्या है, f of x x क्यूब माइनस 5x प्लस 1, और उसका डेरिवेटिव भी चाहिए फॉर न्यूटन रैप्सन मेथड. तो आपके पास आ जाएगा एक 3x स्क्वायर माइनस 5. नाउ यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड हमारे पास जो इटरेशन फॉर्मूला है विच इज इक्वल्स टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के ओवर एफ डैश एक्स के केथ पोजिशन पे. सो वी गेट हेयर एक्स के प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स के माइनस फंक्शन एट एक्स के. तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है एक्स के का क्यूब 5x के प्लस 1 ओवर इसी फंक्शन में एक्स के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 5, हमने इसमें लिख दिया 3x के स्क्वायर माइनस 5 वेयर k इज इक्वल्स टू 0 1 एंड सो ऑन. ओके, नाउ इफ वी हैव टेकन द फर्स्ट इटरेशन x नॉट इज 0.5, दैट इज k की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास फर्स्ट इटरेशन आ जाएगी x1, x k की वैल्यू है 0.5. लेट्स पहले हमें इसको फॉर्मूला में लिख देते हैं x0 क्यूब 5x0 प्लस 1 3x0 का स्क्वायर माइनस 5. ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया. अब x0 पे हमने वैल्यू लिख देनी है 0.5 माइनस 0.5 का क्यूब 5 0.5 प्लस 1 ओवर 3 0.5 का स्क्वायर माइनस 5. इसको सॉल्व करने के बाद आफ्टर दिस वन वी गेट फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x1 विच इज इक्वल टू 0.17647. You should check this calculation. Now next approximation. Next approximation, by keeping k is equals to 1, we have x2 is equals to x1 minus f at x1 over f at x1 derivative. फंक्शन का डेरिवेटिव पर एट x1 की वैल्यू विच इज इक्वल टू x1 माइनस विच इज इक्वल टू x1 का क्यूब माइनस 5x1 प्लस 1 ओवर 3x1 का स्क्वायर माइनस 5 विच इज़ फर्दर इक्वल टू, जब हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं तो वी कैन राइट इट ऑल्सो 2x1 क्यूब माइनस 1 divided by 3x1 square minus 5 for k is equals to 0 1. for k 0 हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं. अब ये थी वैल्यू फॉर k 1 के लिए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है फॉर विच वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x1 की वैल्यू जो हमारे बैक साइड में आएगा विच इज़ इक्वल टू 0.176471. ये वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है इन दिस इक्वेशन एंड आफ्टर दिस वी गेट x2 इज इक्वल टू 0.201568. Similarly, we have to find x3 which is again formula x2 minus f of x2 over the derivative at x2, and after solving all this 2x2 cube minus 1 over 3x2 square minus 5 and substituting this value x2 we get the value of x3 which is 0.201640. Next approximation is x3 f at x3 over the derivative x3 which is equal to 2x3 cube minus 1 over 3x3 square minus 5 which is equal to 0.201640. So therefore the two values at
1 2 3 4 decimal places. In fact, here we get 6 decimal places same, but we have asked for only 4 decimal places. करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस हमारा सॉल्यूशन सही आना चाहिए. इसके लिए हमने इसको रिपीटेड देखा. थर्ड में भी आपके पास वही 4 डेसिमल तक है, वही आपके पास 4 तक है. अगर 6 तक पूछा जाता तो आपको 6 तक सेम डिजिट्स आनी चाहिए. तो यहाँ ऑटोमेटिकली हमारे पास 6 डिजिट्स आ चुकी हैं. देयरफॉर द एग्जैक्ट वैल्यू करेक्ट टू 6 decimal places is 0.201640. That is the solution. Next question is we have to find the root of cos x is equal to x e raised to power x by Newton-Raphson method correct to 3 decimal places. अब हमें सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस को, दैट इज आपके पास 3 डेसिमल प्लेसेस जो आपके पास आती हैं 2.a b c, ये 3 सेम होनी चाहिए. बाकी में भी वेरिएंट अब आपने वहीं पे जो फॉर्मूला है, जो स्टेप्स हैं, स्टॉप कर देना है. लेट्स रीराइट दिस इक्वेशन. गिवन इक्वेशन x e raised to power x minus cos x equals to 0. लेट द फंक्शन ऑफ द फॉर्म हमें लिखना पड़ता है cos x equals to 0, f of x is equals to 0 के फॉर्म में. सो we have f dash x x e raised to power x plus e raised to power x plus sin x, just the derivative of this function, and in the form we can write it like this, sin x. Okay, now again we have to check for the roots. एक फंक्शन, एक ऐसी वैल्यू जिस पे फंक्शन पॉजिटिव हो और एक ऐसी वैल्यू जिस पे फंक्शन नेगेटिव हो. वी हैव टू चेक फॉर रैंडम चेक फॉर वैल्यूज. -1 भी चेक कर सकते हैं, -2 -3 1 2 3 4 0 एनी वैल्यू. सो वी हैव फंक्शन है ये, और इस पे हमने 0 पे चेक किया, e raised to power 0 cos of 0 which is -1 less than 0, and f at 1 is equals to 1 e raised to power 1 minus cos 1 which is equals to 2.178 which is of positive. यहाँ पे हम जो cos में एंगल लेंगे वो हम रेडियंस में ले रहे हैं. ओके, अनटिल अनलेस आपको गिवन ना हो कि डिग्रीज में कैलकुलेट करना है, हम वी टेक इट एंड रेडियंस. तो कैलकुलेटर में जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, इसमें सारी वैल्यूज़ होती हैं. आप सिलेक्ट करते हैं कि आपको जो वैल्यूज़ चाहिए कॉस साइन टैन की, वो आपको रेडियंस में चाहिए या फिर आपको डिग्रीज में चाहिए. तो वी हैव कैलकुलेटेड डिग्रीज में. तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आती है 2.71828, और ये जो वैल्यू आती है इट इज़ इक्वल टू 0.54030236. तो इनको सब्ट्रैक्ट करके वी गेट 2178 which is greater than 0. So the real root equation gives between 0 and 1. Also we have seen that f at 0 is more closer to the 0 than f at 1. जो f1 पर है it is 2. The function become 2.178. So f function is more farther for 2.178. So f0 is -1. Which one is closer? -1 is closer to 0 or 2.178 is more closer to 0? So we have seen this, -1 is more closer to 0. इसका मतलब function become 0, near to 0, near this x is equals to 0 पे. जितना x 0 पे function अपने रूट के क्लोजर है उतना f1 के नहीं है. तो वी टेक द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन फॉर x0 इज इक्वल्स टू 0. सो द फर्स्ट इटरेशन इज x1 इज इक्वल्स टू x0, f at x0, f dash at x0 which is x0 minus x0 e raised to power x0 minus cos x0 over e raised to power x0 x0 plus 1 प्लस साइन x0, जो कि हमने यहाँ से लिया है डेरिवेटिव, और ये जो आपके पास फंक्शन है. तो हमारे पास ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ गई. सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ x0, जहाँ जहाँ पे x0 की वैल्यू आनी चाहिए वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी. 0
और आपके पास वैल्यू आ गई 1। सेकेंड इटरेशन तो हमारे पास ये आ गया x1 इज इक्वल्स टू 1। नाउ द सेकेंड इटरेशन या फिर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन इज x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस f एट x1 f डैश एट x1 विच इज फाइनली मैं जब सब्स्टिट्यूट करूंगी x1 माइनस बस जो आपके पास fx की वैल्यू है वहाँ x की जगह पे आपने x1 रख देना है। फॉर नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x1 रखने के बाद आपके पास आ रहा है 1 माइनस जहाँ x1 था वहाँ पे आपके पास 1 इंटू ई रेज़ टू पावर 1 कॉस 1 प्लस 1 प्लस साइन 1। Again, after calculating this value, we get 0.6531, substituting all the values at x1. Now third iteration, क्योंकि इससे पिछली iteration में आपके पास वैल्यू आ रही है x1 की 1, तो x2 आपके पास आ रहा है 0.6531। तो हमें देखना पड़ेगा करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस सेम इटरेशंस आ जाएं। तो थर्ड मैं डायरेक्ट आपको बताने वाली हूँ कि वैल्यू क्या आएगी। f डैश x2 वही चीज़ करनी है x2 e raised to power x2 cos x2 over x2 plus 1 plus sin x2। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x2 हमारे पास है 0.6531। इसी वैल्यू को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, देन वी गेट दैट इटरेशन 0.53134337। नेक्स्ट है x4, बिकॉज अभी भी हमारे करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट अगेन अप्रॉक्सीमेशन करनी है विच इज़ x3 f डैश x3। इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज़ को, जैसे ही x3 किया तो आपके पास आ जाएगा 0.51790991। एंड अगेन द फोर्थ x5 विल गिव x4 minus f dash x4 which is equal to 0.51775738। now we have 3 decimal places same, अब बाद में चाहे जो मर्जी हो, therefore the fourth and fifth iteration has no change in successive approximation to the root up to first 3 decimal places. So a real root of this given equation becomes x is equals to 0.517 correct to 3 decimal places. Thank you.